Hello students, last lecture we discussed sole proprietorship. So it means what? इंडिविजुअल जो भी खुद का ऑर्गेनाइजेशन खोलते उसको सोल प्रोप्राइटर मतलब एक ही आदमी उसका ये कर सकता है. So now we'll discuss with the partnership organization. पार्टनर आपको को मालूम है पार्टनरशिप में को भी जो भी करना है. सो पार्टनरशिप में आप ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं, लेकिन सो हाउ इट शुड बी and what are their advantages, what are these disadvantages. So let us discuss. According to the Indian Partnership Act, the partnership can be defined as the relationship between person who have agreed to share profit of a business concern carried on by all or any one of them acting for all, when two and up to 20 persons in case of non-banking business and up to 10 case of banking business enter into contract to carry on a business allowed by a law. मतलब एक गवर्नमेंट का एक रूल्स है, पार्टनरशिप में बिजनेस करना है वो सभी मिलके देर इज़ अ एग्रीमेंट बिटवीन द ग्रुप्स डिफरेंट पर्सन्स, ये सभी लोग एग्री करना होना चाहिए. वो जो भी प्रॉफिट आता है वो सभी मिल के इक्वली सो दे हैव टू शेयर. वो शेयरिंग का मतलब व्हाट इज़ देयर कंट्रीब्यूशन, सो अकॉर्डिंगली सो यू कैन इन्वेस्ट इट, यू कैन स्टार्ट इट. और इसमें क्या कैसा होता है, इसमें टू ग्रुप्स होता है. इफ़ इट इज़ अ नॉन बैंकिंग बिजनेस सो up to 20 persons can make a partnership organization. Suppose if it is a banking business, so up to 10 there is a partnership. Okay, so this is as per the Indian Partnership Act, there is a government act is there. So accordingly, if it is a non-banking, so up to 20. If it is a banking business, it is a up to 10. It is. Partnership is the relationship between the persons desires of starting a business, and they combine or invite together to increase their resources, capital, labor, skill and ability. सो इसे एक एडवांटेजेस अभी बोल सकता हूँ मैं. पार्टनरशिप में आप लोग 10 मिल के काम कर रहे हैं, एक आदमी टेक्निकल है, एक आदमी फाइनेंशियली स्ट्रांग है और एक आदमी एडमिनिस्ट्रेट के लिए स्ट्रांग है. सो अलग अलग उसके पास जो भी टैलेंट रहता है वो यूज़ कर सकते, यूज़ करके आप लोग बिजनेस बढ़ा सकते इधर. फॉर द बेस्ट पार्टनरशिप द नंबर ऑफ पार्टनर्स शुड नॉट बी मोर देन 6. So should not be more than 6. So up to 20 government is allowed, but you want to have a good business, it should not be more than 6. The lesser the better, more than 6 the lesser the better. In generally happens that persons with a good idea and experience of business make partnership with the moneyed people. So इतना ज़्यादा लोग आप लोग होते हैं उसमें एक एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं. सो कितना कम हो सकता है उतना पार्टनरशिप में आ जाए, बट एज पर द गवर्नमेंट सो यू कैन गो अप टू द 20. इफ इट इज़ अ नॉन बैंकिंग, इफ इट इज़ अ बैंकिंग इट इज़ अप टू ओनली 10. But it is just suggested that it should not be more than 6. Okay, more than 6 or lesser is the better. If the more the people, there is a sometimes due to misunderstanding there is a more complications. So what are the advantages of the partnership organization? It can be formed without much legal formalities. Legal का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट का जो
रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है, सो इसमें इतना झंझट में आप लोग पढ़ नहीं सकते. So without much legal format, there are some, there is some government rules are there, accordingly you to form the business, but they are not much complicated. It can be formed without heavy expenditure of organization and stamp duty. So heavy expenditure में नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग आपस में मिल के काम करते रहते हैं. सो इंडिविजुअल का एक्सपेंडिचर देखे तो इतना हैवी नहीं होता है. इतना स्टैम्प ड्यूटी मतलब दिस इज़ अ वन, आप लोग अग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल आप लोग बारडे पे रहते हैं तो उधर स्टैम्प ड्यूटी करना पड़ता है, अग्रीमेंट. हाँ, इतना हैवी, इतना सिंपल एग्रीमेंट रहता है सर. सो दैट कैन बी वन टाइप ऑफ एडवांटेजेस. इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है स्टैम्प ड्यूटी पे. दिस ऑर्गेनाइजेशन एंजॉयज मोर फ्रीडम एंड इज नॉट अ सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सुपरविजन. मतलब एक एक कैसा कंपनी रहता है, दे हैव टू फॉलो द वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. बट इधर पार्टनरशिप में जो भी रहता है इतना आप लोग को स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं रहता है, इतना गवर्नमेंट का सुपरविजन भी नहीं रहता है. सो यू कैन एंजॉय द मोर फ्रीडम ओवर हियर. द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी कलेक्टेड इज मोर देन ऑफ अ सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ही आदमी, उसका कितना कैपेसिटी रहता है उतना भी कर सकते हैं. लेकिन इधर आप लोग कैपिटल कलेक्ट मतलब सो कितना लोग आप लोग पार्टनरशिप में रहता है वो हर एक आदमी का कैपेसिटी से. सो यू कैन कलेक्ट द मोर अमाउंट ओवर हियर. इन दिस टाइप द पर्सन possessing different abilities and skills are chosen and brought together. Already I told you, if you are a number of peoples are more, then हर एक आदमी का अलग अलग टैलेंट रहता है. वो एक एक टैलेंट आप यूज़ करके आपका बिजनेस बढ़ा सकते हैं उधर. एक आदमी टेक्निकल में स्किल रख सकता है, एक आदमी फाइनेंशियली स्ट्रांग रहता है, एक आदमी फाइनेंशियल कैसो मैनेज कर सकता है. सो अलग अलग टैलेंट रहता है. सो इसको यूज़ कर सकते हैं, आपके बढ़ा सकते हैं. The affairs of firm can easily be kept secret if the number of persons in the group are less. So you can maintain a secret over here. So this is the one more advantages. These are the main advantages of partnership organizations. Next, applications used in the medium scale automobile sector, used in the power sector, used in the small scale industries. एकदम बड़ा इंडस्ट्री, सो यू कैन नॉट गो फॉर दिस. सो इन these some extent, so you can go for the medium scale automobile sector, use it in the power sector, use it in the small scale industries. So next, different types of partners. अभी आप लोग पार्टनरशिप का बात कर रहे थे हम लोग. कैसा कैसा पार्टनर हो सकता है. एक जनरल पार्टनर, इसका मीनिंग क्या होता है. ऑल द पार्टनर्स हु आर इन द पार्टनरशिप नोन एज अ जनरल पार्टनर. ऑल द पार्टनर्स हु आर इन द पार्टनरशिप, जनरल पार्टनर्स. सो सभी लोग इक्वली उसको राइट्स रहता है, जनरल पार्टनर्स बोलता है. एक्टिव पार्टनर्स का मतलब क्या होता है. दीज आर दोज पार्टनर्स हु टेक एक्टिव पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिसीज. अभी समझो आप लोग 10 लोग हैं, उसमें 5 लोग ही पूरा इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. दीज आर दोज पार्टनर्स एक्टिवली पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज. मतलब जो भी डिसीजन लेना है, जो भी पॉलिसी करना है, ऐसा लोगों को हम लोग एक्टिव पार्टनर हो बोल सकते हैं. क्योंकि एक बार ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है, ये सब 10 लोगों को बना के आप लोग बिजनेस कर सकते हैं. 10 लोग मतलब 5 लोग इनएक्टिव रहता है, 5 लोग एक्टिव रहता है. मतलब जो भी करते हैं वो आई कैन टेल देम देर आर डेड पार्टनर्स. सिंपली फॉर्मेलिटी के लिए उसको ज्वाइन किया हुआ रहता है. जो भी एक्टिव करते हैं ना, वो एक्टिव रहता है, वो जो डिसीजन लेता है, पॉलिसीज बनाते हैं. So that type of partners, they are called as a active partner. Then there is a next is a sleeping and a silent partners.
स्लीपिंग मतलब सोया रहता है ऐसा नहीं रहता है, सिर्फ इन्वेस्ट करके बैठा रहता है वो लोग, जो भी प्रॉफिट आता है उसको देने का। दे विल नॉट टेक पार्ट इन योर एनी एक्टिविटीज ऑफ योर इंडस्ट्री, just to support you they will put some amount, they will invest some amount with you. Partners who just invest money and do not take any part in the management are known as a sleeping or a silent partners. Such members, after contributing their share of a capital, wake up only either to share the profits or to liquidate the business. उसका काम क्या है? ओनली दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन देयर प्रॉफिट्स, they are not going, they will not bother about your what your policies what, but only thing they are interested in their profits and or liquidate that business. मतलब वो जो भी प्रॉफिट आता है उसको और बढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन they will not take any decision over there. Those type of partners are called as a sleeping or a silent partners. Secret partners, these partners take part in the management secretly but nowhere their names appear. So ऐसा है, किंग मेकर करके आप लोग पॉलिटिक्स में सुनते हैं, किंग मेकर्स, दे विल नॉट कम इन द पिक्चर, दे विल नॉट कम इन द पिक्चर, लेकिन वो गवर्नमेंट को रोल करते रहता है सीक्रेटली, दे टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। अभी आप लोग सुना होगा, आप लोग को एक्सपीरियंस है, एक बार गवर्नमेंट एक आदमी उसको चला सकते हैं, सीएम ऐसा रहता है। सो लाइक दैट इवन इन द इंडस्ट्रीज ऑल्सो दे आर अ सीक्रेट पार्टनर बट दे विल टेक अ पार्ट इन द मैनेजमेंट, बट इट इज़ नॉट अ पॉलिटिक्स, दिस इज नॉट लाइक अ पॉलिटिक्स, जस्ट आई हैव गिवन अ एग्जाम्पल। These partners take part in the management secretly but nowhere their names in the appear. इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट को सजेस्ट देते रहते हैं, पॉलिसी के लिए गाइड करते रहते हैं, लेकिन उसका नाम कभी दिखता नहीं है। नॉमिनल पार्टनर्स, पार्टनर्स हु डू नॉट इन्वेस्ट मनी, डू नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट बट दे लेंड देयर रेप्यूटेड नेम फॉर द कंपनीज, रेपुटेशंस आर नोन एज अ नॉमिनल पार्टनर्स। सो इसका बारे में बताया मैं, एक बार गवर्नमेंट का रूल्स ऐसा रहता है, आप लोग पार्टनर भी कितना भी कर सकते हैं, लेकिन एक लोगों को ऐसा रहता है, मेरे को क्या बोलते हैं उसको, रेपुटेशन दिखाना रहता है। मतलब ये टाटा अगर मैं एक मेंबर है, उसमें मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं बाहर बोल सकता हूँ मैं टाटा कंपनी का डायरेक्टर टाटा कंपनी का डायरेक्ट बोलने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा इज्जत बढ़ जाता है। ऐसा भी लोग हैं, nominal partners, just they are nominated to that particular company but they are not going to invest and they are not at all concerned to the policies or any decisions. Such type of partners are called as a nominal partners. Minor partners, a person who has not attained age of 18 years and associated with the business is known as a minor partner. Such partners can be allowed only with the कंसेंट ऑफ अदर मेंबर्स। आप लोगों को भी मालूम है, अंडर 18 दे आर नॉट एलिजिबल फॉर, इवन यू नो दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टू गेट द लाइसेंस ऑल्सो। सो ऐसा भी है, बड़े बड़े लोगों का ये रहता है, लेकिन दे लोग इन्वॉल्व रहता है, दे लोग बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है, बट सच पार्टनर्स can be allowed only with the consent of their members. उसको साइनिंग अथॉरिटी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन दे आर अ पार्टनर्स। सच टाइप ऑफ पार्टनर्स आर कॉल्ड एज अ माइनर पार्टनर्स।